جب اکرمہ کعب بن اسد سے ملنے جا رہا تھا اس وقت نعیم بن مسعود اپنے قبیلے کے سردار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ بھی انہوں نے کعب بن اسد کے متعلق وہی باتیں کی جن باتوں سے وہ ابو سفیان کو بھڑکا چکے۔ ابو سفیان نے غصے میں آ کر اکرمہ کو بلایا۔ غطفان نے اپنے سالار کو بلا لیا۔ کیا تم نے سنا کہ کعب بن اسد ہمیں دھوکہ دے رہا ہے؟ فان نے اینیا سے کہا، وہ ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے سرکردہ افراد مانگتا ہے، کیا یہ ہماری توہین نہیں؟ سالار غطفان سالار اینیا نے کہا، میں پہلے تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میرے ساتھ میدان جنگ کی بات کرو۔ میں آمنے سامنے کی لڑائی جانتا ہوں۔ مجھے اس وقت شخص سے نفرت ہوگی جو پیٹھ کے پیچھے آ کر وار کرتا ہے، اور مجھے اس شخص سے بھی نفرت ہوگی جس کی پیٹھ پر وار ہوتا ہے۔ اور پھر تم یہودیوں پر اعتبار کرتے ہو۔ اگر کعب بن اسد کہے گا کہ مجھے اپنے قبیلے کے سردار غطفان یرغمال میں دے دو تو کیا میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں؟ میں اس شخص کا سر اڑا دوں گا جو ایسا مطالبہ کرے گا۔ نعیم بن مسعود نے کہا، میں ان یہودیوں کو اپنے قبیلے کی ایک بھیڑ یا بکری بھی نہ دوں گا، خدا کی قسم، کعب نے ہماری توہین کی ہے۔ ابو سفیان کیا کہتا ہے؟ غطفان نے نعیم سے پوچھا۔ یہ بات سن کر ابو سفیان غصے سے کانپنے لگا تھا۔ نعیم نے کہا، ابو سفیان کہتا ہے کہ وہ کعب بن اسد سے اس توہین کا انتقام لے گا اور اسے انتقام لینا چاہیے۔ سالار اینیا نے کہا، بنو قریظہ کی حیثیت ہی کیا، وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان اس طرح پس جائیں گے کہ ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ خالد کو آج مدینے کی طرف جاتے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اکرمہ بنو قریظہ کی بستی سے واپس آیا تھا۔ خالد دوڑتا ہوا اس تک پہنچا تھا۔ ادھر سے ابو سفیان گھوڑا دوڑاتا گیا۔ اکرمہ کے چہرے پر غصہ اور تھکن کے اثار۔ کیا خبر لائے ہو؟ ابو سفیان نے اس سے پوچھا۔ خدا کی قسم ابو سفیان، میں نے کعب سے زیادہ بدنیت انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اکرمہ نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے جواب دیا۔ نعیم نے ٹھیک کہا تھا، کیا اس نے ہم سے یرغمال میں رکھنے کے لیے آدمی مانگے ہیں؟ خالد نے پوچھا تھا۔ ہاں خالد، اکرمہ نے کہا تھا، اس نے مجھے شراب پیش کی اور میرے ساتھ اس طرح بولا جیسے ہم اس کے مقروض ہوں۔ اس نے کہا، پہلے یرغمال میں اپنے آدمی دو، پھر مدینے کے اندر شب خون ماروں گا۔ کیا تم نے اسے کہا نہیں کہ اہل قریش کے سامنے بنو قریظہ کی حیثیت اونٹ کے مقابلے میں ایک چوہے کی ہے؟ خالد نے کہا تھا، کیا تم نے اس کے سر اس کے کندھوں سے اتار نہیں دیا؟ میں نے اپنا ہاتھ بڑی مشکل سے روکا تھا۔ اکرمہ نے کہا، کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا وہ میں توڑ آیا ہوں۔ تم نے اچھا کیا، ابو سفیان نے دبی دبی آواز میں کہا تھا۔ تم نے اچھا کیا، اور وہ پرے چلا گیا تھا۔ یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں تھا، 1.5-2 سال پہلے کی بات۔ آج جب خالد مدینے کی طرف جا رہا تھا تو وہ یہ رستہ جانا پہچانا سے لگ رہا تھا۔ کبھی ایسے محسوس ہونے لگتا جیسے وہ خود اپنے لیے اجنبی ہو گیا ہو۔ اسے ابو سفیان کا افسردہ چہرہ نظر آنے لگا۔ خالد نے محسوس کر لیا کہ ابو سفیان مدینے پر حملے سے منہ موڑ رہا ہے۔ خالد اور اکرمہ وہیں کھڑے رہ گئے۔ کیا سوچ رہے ہو خالد؟ اکرمہ نے پوچھا تھا۔ کیا تم میری تائید نہیں کرو گے کہ میں اس شخص ابو سفیان کی موجودگی کو صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ یہ میرے قبیلے کا سردار ہے؟ خالد نے اکرمہ کو جواب دیا تھا، اہل قریش کو ابو سفیان سے بڑھ کر بزدل سردار کوئی نہیں ملے گا۔ تم پوچھتے ہو میں کیا سوچ رہا ہوں، اور میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ میں نے خندق کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا ہے۔ ایک جگہ خندق تنگ ہے اور زیادہ گہری بھی نہیں ہے، ہم وہاں سے خندق کے پاس جا سکتے ہیں۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں آج ہی اس جگہ سے چند سوار خندق کے پار لے جانا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کسی غیبی مدد اور سہارے کا انتظام کرنا چاہتا تھا تو کرتا رہے، میں تمہارا ساتھ کیوں نہ دوں گا؟ خالد اکرمہ نے کہا، کیا میں نے مسلمانوں کو ان کیفوں کو برداشت کر سکوں گا جو اس وقت بلند ہوں گے جب ہم یہاں سے لڑے بغیر واپس جائیں گے؟ چلو میں تمہارے ساتھ۔ وہ جگہ زباب کی پہاڑیوں کے مغرب اور سلا کی پہاڑیوں کے مشرق میں تھی، جہاں خندق کی چوڑائی اتنی تھی کہ گھوڑا اسے پھلانگ سکتا تھا۔ ضرورت شاہ سوار کی تھی، پیادے خندق میں اتر کر اوپر چڑھ سکتے تھے۔ اس جگہ کے قریب سامنے مسلمانوں کی خیمہ گاہ تھی۔ خالد نے اکرمہ کو یہ جگہ دور سے دکھائی۔ پہلے میرے سوار خندق پھلانگیں گے، اکرمہ نے کہا، لیکن ابھی ہم تمام کا تمام سوار دستہ نہیں گزاریں گے۔ پار جا کر مسلمانوں کو ایک ایک سوار کے مقابلے کے لیے للکاریں گے۔ وہ اس رواج کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ میرے ساتھ آؤ خالد، میں اپنے منتخب سوار آگے لاؤں گا، تم ابھی خندق کے پار نہ جانا۔ اگر ہم دونوں مارے گئے تو اہل قریش کو سوائے ذلت کے کچھ نہیں ملے گا۔ ابو سفیان کا دل محاصرہ اٹھ چکا ہے، وہ لڑنے کے جذبے کو سرد کر چکا ہے۔ وہ مقام جہاں خندق گھوڑے کی لمبی چھلانگ سے پھلانگی جا سکتی ہے ایسی اوٹ میں ہے جسے گشتی سنتری قریب آ کر ہی دیکھ سکتے تھے۔ اکرمہ نے 7 وار منتخب کر لیے تھے، ان میں ایک قوی ہیکل بلکہ دیو قد شخص
शक उमर बिन अब्दूद भी था, जिसकी दाग इसकी जिसामत की वजह से दूर दूर तक फैली हुई। अकरमा इन 7 सवारों को मुकर्रा मकाम से कुछ दूर इस अंदाज से ले गया जैसे घोड़े को टहलाई के लिए ले जा रहे हों। मुसलमानों के संतरियों को इस पर शक न हुआ। सबसे पहले खंदक फलांगूंगा, अकरमा ने चलते चलते अपने 7 सवारों से कहा। क्या ये ठीक नहीं होगा कि सबसे पहले मेरा घोड़ा खंदक फलांगे? उमर बिन अब्दूद ने कहा। नहीं उमर, अकरमा ने कहा, पहले मैं जाऊंगा। अगर मेरा घोड़ा खंदक में गिर पड़ा तो तुम खंदक फलांगने की कोशिश न करना, तुम्हारा सलार अपनी जान की कुर्बानी दे देगा। यह कहकर अकरमा ने घोड़े की बाग को झटका दिया। घोड़े का रुख खंदक की तरफ हुआ। अकरमा ने एड़ लगा दी। अरबी नस्ल का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। अकरमा ने लगाम ढीली कर दी और घोड़े को फिर एड़ लगाई। घोड़े की रफ्तार और तेज हो गई। खंदक के किनारे पर जाकर अकरमा घोड़े की पीठ से उठा और आगे को झुक गया। घोड़ा हवा में बुलंद हो गया। खालिद कुछ दूर खड़ा देख रहा था। कबीला कुरैश के बहुत से लश्करी देख रहे थे, जमीन और आसमान देख रहे थे, तारीख देख रही थी। घोड़े के अगले पांव खंदक के दूसरे किनारे से कुछ आगे और पिछले पांव ऐन किनारे पर जा पड़े। घोड़ा तेज रफ्तार के जोर पर आगे चला गया। इसकी अगली टांगे दोहरी हो गई। का मुंह जमीन से लगा। अकरमा गिरते गिरते बचा। घोड़ा भी संभल गया और अकरमा भी इसे अपने पीछे ललकार सुनाई दी। आगे निकल जाओ अकरमा। अकरमा ने पीछे देखा। उमरों का घोड़ा हवा में उड़ रहा था। उमरों रिकाबों में खड़ा आगे को झुका हुआ था। किसी को तवक्को नहीं थी कि इतने वजनी सवार के नीचे घोड़ा खंदक फलांग जाएगा, लेकिन घोड़ा इसी जगह जा पड़ा जहां अकरमा का घोड़ा गिरा था। उमरू के घोड़े की टांगे ऐसी दूरी हुई कि मुंह के बल गिरा और पहलू में लुढ़क गया। उमरू घोड़े की पीठ से लुढ़क कर कलाबाजियां खाता हुआ एक लम्हे में घोड़ा उठ खड़ा हुआ। उमरू उठा और पलक झपकते घोड़े पर सवार हो गया। इसके पीछे अकरमा के 2 सवार इकट्ठे चले आ रहे थे। खंदक के किनारों पर आकर दोनों सवारों ने अपने घोड़ों की पीठें खाली कर दी और आगे की गर्दनों पर झुके हुए थे। दोनों घोड़े खंदक लांग आए। अहले कुरैश के लश्कर ने दादे तहसीन के नारे लगाए। इस शोर से मुसलमान पहरेदार दौड़े आए। इतने में अकरमा के 2 और घोड़े अपने सवारों को उठाए खंदक के किनारे से हवा में उठे। इनके पीछे 7 में से बाकी सवारों ने भी अपनी घोड़ों को एड़ लगा दी ताकि घोड़े खंदक फलांग आए। ठहर जाओ, अकरमा ने मुसलमान संतरियों को बुलंद आवाज में कहा। कोई और घोड़ा खंदक के इस तरफ नहीं आएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाओ। तुम में से जो सबसे ज्यादा बहादुर है इसे लाओ। वो मेरे एक आदमी का मुकाबला करके गिरा ले तो हम सबको कत्ल कर देना। खुदा की कसम हम तुम्हारा खून इस रेत पर छिड़क कर वापस चले जाएंगे। रसूल करीम इस जगह पहुंचे जहां अकरमा और इसके सवार खड़े ललकार रहे। रसूल करीम के साथ हजरत अली भी थे। आपने सूरत हाल का जायजा लिया तो समझ गए कि अकरमा इनफरादी मुकाबले के लिए आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को देखकर उमर बिन अब्दूद ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। कसम है इब्बर और रजा की, उमरों ने ललकार कर कहा, तुम में से मुझे कोई एक भी नजर नहीं आ रहा जो मेरे मुकाबले में उतर सके। मौरखीन यादों के हवाले से लिखते हैं कि मुसलमानों को खामोशी गवाही दे रही थी कि इन पर उमरों का खौफ तारी हो गया। वजह यह थी कि उमरों की जिसामत और ताकत के ऐसे ऐसे किस्से मशहूर थे जैसे माफूकुल फितरत ताकत का मालिक हो। देखा शायद किसी ने भी नहीं था, लेकिन सब कहते थे कि उमरों घोड़े को अपने कंधों पर उठा सकता है और 500 घुड़सवारों को अकेला शिकस्त दे सकता है। इसके मुतालिक हर कोई तस्लीम करता था कि इसे ना कोई गिरा सका ना गिरा सकेगा। अबू सुफियान खंदक के पार खड़ा सारा मंजर देख रहा था। खालिद और स्वान भी देख रहे थे। गतफान, एनिया और इनका तमाम लश्कर देख रहा था। नईम बिन मसूद भी गैर मुसलमानों के लश्कर में दम बखुद खड़े थे। मैं जानता हूँ तुम में से कोई भी आगे नहीं आएगा। उमरों ने एक बार फिर गरज कर कहा। खंदक के पार कुरैश का कहका बुलंद हुआ। हजरत अली ने रसूल खुदा की तरफ देखा। आपने अपना मामा सर से उतार कर हजरत अली के सर पर बांध दिया, फिर अपनी तलवार हजरत अली को दी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरगोशी सुनाई दी, अली का मददगार तू ही है मेरे अल्लाह। इस तलवार के मुतल्लिक जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को दी थी, कहा है कि ये कुरैश के एक मशहूर जंगजू उम्बा बिन हजाज की थी। वो बदर की लड़ाई में मारा गया था। फाते मुजाहिदीन ने यह तलवार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की थी। आपने इसके बाद यही तलवार अपने पास रखी। आपने वही तलवार हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को देकर अरब के एक कदामत मुकाबले में उतारा। यह तलवार तारीख इस्लाम में जुल्फ़कार के नाम से मशहूर हुई। हजरत अली उमरों के सामने जा खड़े हुए। अबू तालिब के बेटे उमरों जो घोड़े पर सवार था हजरत अली से मुखातिब हुआ, क्या तुम भूल गए तुम्हारा बाप मेरा कितना गहरा दोस्त? क्या ये मेरे लिए बहुत बुरा फेल नहीं होगा कि मैं अपने अजीज दोस्त के बेटे को कत्ल कर दूं? ऐ मेरे बाप के दोस्त, हजरत अली ने ललकार कर जवाब दिया, हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी। खुदा की कसम मैं तुम्हें सिर्फ एक बार कहूंगा कि अल्लाह को बरहक और रसूल करीम को अल्लाह का रसूल तस्लीम कर लो और हम में शामिल हो जाओ। तुमने एक बार कह लिया। उमरों ने कहा, मैं दूसरी बार ये बात नहीं सुनूंगा। मैं ये भी कहूंगा कि मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। उमरों, हजरत अली ने कहा, उतर घोड़े से और आ मेरे मुकाबले में और बचा ले अपने आप को इस तलवार से जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की है। उमरों के मुतल्लिक मौरख लिखते हैं कि वो वैशी था। जब गुस्से में आता तो इसका चेहरा गजबनाक होकर दरिंदों जैसा
जैसा हो जाता था। वो घोड़े से कूद कर उतरा और तलवार सोचकर हजरत अली पर पहला वार इतनी तेजी से किया कि देखने वाले ये समझे कि इसकी तलवार ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का काट दिया है, लेकिन हजरत अली ये वार भरपूर तरीके से बचा गए। के बाद उमरों ने एक के बाद दीगरे हजरत अली पर मुतअद्दिद वार किए। हजरत अली ने हर बार गैर मुतवक्के पैंतरा बदल कर बचाया। उमरों ने यह सोचा ही नहीं था कि जिस जिसामत और कद ताक पर इसे इतना घमंड था वो हर जगह काम नहीं आ सकते। एक जने के मार्के में जिस तेजी और फुर्ती का मुजाहरा हजरत अली कर रहे थे वो उमरों नहीं कर सकता था, क्योंकि इसका जिस्म भारी भर, अगर वो घोड़े को अपने कंधों पर उठा सकता था तो इसमें घोड़े जैसी रफ्तार नहीं, इसकी ताकत घोड़े से ज्यादा भी हो सकती थी। हजरत अली ने पर एक भी वार न किया। उमरों ने खौफजदगी में समझा होगा कि इस वो वार पर वार कर रहा है और हजरत अली कभी उधर कभी इधर होते रहे। खंदक के पार अहले कुरैश का लश्कर जो कहके लगा रहा था यकला खामोश हो गया, क्योंकि इनका देव क़यामत उमरों वार करते करते रुक गया और खामोश खड़ा हो गया था। वो हाँप रहा, वो गालिबन हैरान था कि ये नौजवान जो कद बूत में इनके जिस्म का 20वां हिस्सा भी नहीं, इससे मरगूब क्यों नहीं हुआ। दरअसल उमरों थक गया था। हजरत अली ने जब इसकी ये हालत देखी तो अपनी ताकत इतने सारे वार करते करते सरफ कर चुका है और परेशान और हैरान खड़ा है। तो हजरत अली ने यह हैरान कुन मुजाहरा किया कि तलवार फेंक कर बिजली सी की तेजी से उमरों पर झपटे और उछल कर इसकी गर्दन अपने हाथों में दबोच ली। के साथ ही हजरत अली ने उमरों टांगों में अपनी टांग ऐसी फंसाई कि वो पीठ के बल गिरा। इसने अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए बहुत जोर लगाया, लेकिन इसकी गर्दन हजरत अली की एनी गिरफ्त से आजाद न हो सकी। हजरत अली ने की गर्दन से एक हाथ आकर कमर बंद से खंजर निकाला और इसकी नोक उमरों की इशारत पर रख दी। अब भी मेरे अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आओ तो मैं तुम्हारी जान बख्शी कर दूंगा, हजरत अली ने कहा। उमरों ने जब देखा कि इसकी वो ताकत जिससे अहले अरब लरजते थे बेकार हो गई है, इसने ये अच्छी हरकत की कि हजरत अली के मुंह पर थूक दिया। देखने वाले एक बार फिर हैरान रह गए कि हजरत अली खंजर से इसकी शारक काटने की बजाय खड़े हुए। इन्होंने खंजर को कमरबंद में उड़ेस लिया और हाथों से अपना चेहरा साफ किया। उमरों अब इस तरह उठा जैसे इसके जिस्म की ताकत खत्म हो चुकी हो। ऐसे ही नहीं, हर किसी को तवक्को थी कि हजरत अली इसे जिंदा नहीं उठने देंगे, लेकिन हजरत अली बड़े आराम से पीछे हटे। उमरों, हजरत अली ने कहा, मैं अल्लाह के नाम पर तुम्हारे साथ जिंदगी और मौत का मुकाबला किया था, लेकिन तूने मेरे मुंह पर थूका, मेरी दिल में जाती दुश्मनी पैदा कर दी। मैं तुझे जाती दुश्मनी की बुनियाद पर कत्ल नहीं करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खुदा को मेरा इंतकाम अच्छा ना लगे। जा यहाँ से अपनी जान लेकर वापस चला जा। उमरों शिकस्त तस्लीम करने वाला आदमी नहीं था कि मैदान में इसने ये पहली हार देखी थी जिसे वो बर्दाश्त न कर सका। इसने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए ये अच्छी हरकत की कि तलवार निकालकर हजरत अली पर झपट पड़ा। हजरत अली इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इसकी कामयाबी के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी। एन इस वक्त जब उमरों की तलवार हजरत अली की गर्दन में 2-4 लम्हे का फासला रह गया, हजरत अली ने अपनी ढाल आगे कर दी। उमरों का वार इस कदर जोरदार था कि इसकी तलवार ने हजरत अली की ढाल को काट दिया। ढाल हजरत अली के कान के करीब सर पर लगी, जिससे खून फूटने लगा। उमरों ढाल में से तलवार खींच ही रहा था कि हजरत अली की वो तलवार जो इन्हें रसूल करीम ने दी थी इतनी तेजी से हरकत में आई कि उमरों की गर्दन कट गई। गर्दन पूरी ना कटी, लेकिन शारक उमरों की तलवार इसके हाथ से छूट गई। इसका जिस्म डोलने लगा। हजरत अली ने पर दूसरा वार ना किया। इसने देख लिया था कि यही वार काफी है। उमरों की टांगे दोहरी हुई कि घुटने जमीन पर लगे और लुढ़क गया। अरब की मिट्टी इसका खून चूसने लगी। खंदक के पास दुश्मन के लश्कर पर ऐसा तारी हो गया जैसे पूरे का पूरा लश्कर मर गया हो। अब मुसलमानों के नारे गरज रहे थे। अरब की रस्म के मुताबिक इस मुकाबले का दूसरा मरहला शुरू हुआ। मुसलमान के एक जैश ने अकरमा और के बाकी सवारों पर हमला कर दिया। कुरैश के इन सवारों के लिए भाग निकलने के सिवा कोई चारा न था। वो खैरियत से पिछपा होने के लिए लड़े। मार्के में कुरैश का एक आदमी मारा गया। अकरमा ने अपना घोड़ा खंदक की तरफ मोड़कर भागने के लिए एड़ लगा दी। खंदक फलांगने से पहले अकरमा ने अपनी बर्छी फेंक दी। इनमें से एक सवार जिसका नाम खालिद बिन अब्दुल्ला था, खंदक को फलांग न सका। इसका घोड़ा खंदक के अगले किनारे से टकराया और खंदक में जा पड़ा। वो उठकर किनारे पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुसलमानों ने इस पर पत्थरों की बौछार कर दी और वही खत्म हो गया।